welcome or welcome back to my channel Arunika's Academy. So here I am back to my channel, and today we are going to start with the very first poetry of our book Flamingo class 12th, which is My Mother at 66, which is written by the poet Kamla Das. So, as you can understand from the title itself, My Mother at 66, which means this poetry is going to be all about mother and her old age. पोइट्री का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस पोइट्री की थीम क्या है. तो बेसिकली इस पोइट्री की थीम है फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर. तो यहाँ पे जो पोएटिस हैं कमला दास, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं. उन्हें फियर है किससे? ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर. अपनी मदर से सेपरेशन का उन्हें डर है. उन्हें उनकी ओल्ड एज का डर है. उन्हें ये डर है कहीं ना कहीं कि जैसे जैसे उनकी मम्मी बूढ़ी हो रही हैं, उनकी उम्र हो रही है, तो वैसे वैसे कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी मम्मी की डेथ हो जाएगी और वो अपनी मम्मी को कभी नहीं देख पाएंगी उसके बाद. तो ये डर है उनका, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर. और ये जो डर है वो अभी नहीं है, मतलब वो उनकी एडल्टहुड में ही नहीं है. सिर्फ जो वो डर है, वो डर उनके चाइल्डहुड से है. आगे चल के हम पढ़ेंगे, उन्होंने यहाँ मेंशन किया है फैमिलियर एक, यानी कि ऐसा पेन. एक यानी कि ऐसा पेन जो कि वो पहले भी अनुभव कर चुकी है, पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं. तो ये जो दर्द है वो कोई नया नहीं है उनके लिए, जो कि उनके एडल्टहुड में अब उन्हें डर लग रहा है. ये वही डर है या फिर ये वही दर्द है, ये वही पेन है जो कि उन्हें चाइल्डहुड में भी हुआ था, विच इज़ fear of separation from her mother. ओके, तो ये बेसिकली जो थीम है पोएम की वो यही है, fear of separation from a mother in childhood and as well as in adulthood. Now let's quickly move and understand about the poet of this poetry, Kamla Das. So here you can see our poet is Kamla Das. So Kamla Das, she is born in 1934 and took her last breath in 2009. She was born in Malabar. She was born in Malabar, which is situated in Kerala. Okay, she is recognized as one of the India's foremost poets. She is mainly known for her work, which is for her originality, her versatility, and most importantly, her indigenous flavor. Indigenous means related to one's own country or nation. So here in this poetry also you are going to see something related to indigenousness. Means you are going to study, or you are going to see some words which are used in our country India, in our nation. Okay, so here Kamla Das has also published many novels, short stories in English and also in Malayalam under the name Madhav Vikuti. Some of her works are in English also, which include the novel which is Alphabet of Lust. These all things are not going to come in your board exam. We are going to start a poetry, so we should also know about our poet who has written this poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relation in lyrical idiom. And this poetry, My Mother at 66, is an example of this only. One line under the heading before you read. So here it's written that aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? So yes, we can discuss this, that aging, it's a very sensitive issue and it's also a very natural process. ठीक है,
and our we have seen around our mothers, our father, as we are growing, they are also growing old, they are also becoming dependent on us. It's a duty of every student to help their parents, to make their parents feel comfortable, to talk to their parents, to help them in all sort of possible ways which you can do. So without wasting much time, let's begin with our poetry, My Mother at 66. So let's start with the poetry, My Mother at 66, which is written by Kamala Das. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. तो यहाँ पे I and my, they both refers to the poetess which is कमला दास. तो यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से अपनी पोइट्री की शुरुआत की है कि वो अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करके जा रही थी टू कोचिन पिछले फ्राइडे मॉर्निंग, एंड उन्होंने अपनी मदर को देखा बिसाइड मी. बिसाइड हियर रेफर्स टू अलॉन्ग साइड. So she has seen her mother alongside, doors open mouth, her face ashen like that. ओके, सो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि उनकी जो मम्मी है वो उनके पीछे बैठी हैं, बिसाइड या फिर उनके साथ बैठी हैं. बिसाइड हियर मीन्स अलॉन्ग साइड, ठीक है, उनके पास बैठी हैं. एंड डॉज ओपन माउथ, तो यहाँ पे डॉज यानी कि स्लीपी है, वो थोड़ी अनकॉन्शियस स्टेट में है. एंड ओपन माउथ, तो ओपन माउथ आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, तो जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा वो मुंह खोल के सोते हैं, बिकॉज एज जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है उनको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में. तो जब वो मुंह खोल के सोते हैं तो थोड़ी उनकी डिफ़िकल्टी कम हो जाती है और उन्हें ईजिली ब्रीथ करने और वो ईजिली ब्रीथ कर पाते हैं. तो इसीलिए उन्होंने ओपन माउथ है उनका. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. हियर कॉर्प्स इज रिलेटेड टू डेड बॉडी. Corpse means dead body. So here the poetess has compared her mother's face with that like of the corpse, means dead body, because she is sleeping, she is unconscious at that time, and her face is ashen like that of a dead body, as if some dead body is lying on some dead body is lying alongside with her. Okay, and she realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. So here the poet think that her mother is looking same as she is. मतलब कि उनकी मम्मी वैसे ही लग रही है जैसे कि वो हैं ओल्ड. ऑफकोर्स 66 की हो गई है वो, और वो ओल्ड है, तो उनकी मम्मी वैसे ही लग रही है डेड बॉडी की तरह. एशन उनका फेस है जैसे कि वो एक्चुअल में है. रियलिटी है ये बेसिकली. यहाँ पे जो पोएटेस है वो रियलिटी को हिट कर रही है कि हाँ मेरी मम्मी ओल्ड हैं, ठीक है. लेकिन सून शी पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट. बट उन्होंने एक बार को उनके दिमाग में ये थॉट आया, बट दूसरे पल उन्होंने ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दिया. एंड शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ हर विंडो वेयर शी सी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. ठीक है, हियर व्हाट शी सॉ दैट ट्रीज हियर आर स्प्रिंटिंग, मीन्स ट्रीज जो है, जैसे जैसे हम चलते हैं गाड़ी से या कोई भी व्हीकल से हम जब जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ट्रीज भी हमारे साथ भाग रहे हैं, बट एक्चुअली में वो नहीं भाग रहे होते हैं, दे आर स्टिल. बट जब क्योंकि हम मूव कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ मूव कर रहे हैं. तो यही फीलिंग उस वक्त पोएट को होती है. And she also saw here merry children, they were spilling out of their homes. Means the children, they are happily, merrily, they are playing outside their home happily. Okay, so here trees sprinting and merry children spilling here means falling out. तो यहाँ पे पोएट को एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक उन्हें रियलाइजेशन होती है. बेसिकली इट इज़ अ कॉन्ट्रास्टिंग थीम. क्या है यहाँ पे? कॉन्ट्रास्टिंग थीम है
क्योंकि अभी जो पोएट है वो अभी अपनी मम्मी के बारे में सोच रही थी, उनकी ओल्ड एज के बारे में सोच रही थी, बट अभी सडनली वो किसके बारे में सोच रही हैं, यूथ के बारे में सोच रही हैं, जो चिल्ड्रन खेल रहे हैं उनके बारे में सोच रही हैं। तो यहाँ पे नई उन्हें क्या मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, एक रे ऑफ होप मिलता है उन्हें, ठीक है। So, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. तो जब अब वो सिक्योरिटी चेक पे होती हैं एयरपोर्ट पे, तो वो फिर से देखते हैं। तो बेसिकली वो जा रही होती हैं कोचिन अपने घर, एंड वो फिर से देखती हैं अपनी मम्मी को। तो अब वो यहाँ पे क्या देखती है, अगेन शी सॉ दैट हर मदर इज वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वैन है उनकी मम्मी, यानी कि उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रही हैं। वैन हियर मीन्स कलरलेस, पेल मतलब कि जैसे हम कहते हैं नहीं आपका फेस बहुत पेल हो गया है, बहुत मतलब कि सुस्त सा, ठीक है। तो वैसी उनकी मम्मी का फेस लग रहा था, एज अ लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, एज अ लेट विंटर मून। तो जैसे जब विंटर्स आती हैं तो जैसे मून की जो ब्राइटनेस होती है, मून की जो शाइन होती है वो फेड हो जाती है, ठीक है। एज मून की जो जैसे जैसे विंटर आती है, फॉग होता है, तो वैसे वैसे जो मून की शाइननेस होती है, उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो फेड होने लगती है। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे एज पास हो रही थी, जैसे जैसे उसकी मम्मी और ओल्ड हो रही थी, जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी मम्मी भी और ओल्ड होती जा रही थी, किसकी, पोएटेस की, ठीक है। तो नाउ and felt that old familiar ache. Familiar ache is the pain. Familiar ache here is the pain which is being experienced already. Familiar मतलब वो कुछ नया नहीं है, कोई नया दर्द नहीं है, ये वही दर्द है जो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं कभी ना कभी, यानी कि अपने चाइल्डहुड में। तो हमेशा तो कभी ना कभी हमें भी, तो कभी ना कभी हमने भी अपनी लाइफ में ये डर होता है अपने पेरेंट्स को खो देने का, स्पेशली मदर्स को। तो उन्होंने भी ये डर महसूस किया है अपने बचपन में, माई चाइल्डहुड स्फेयर। तो वो कह रही है कि ये जो दर्द है, ये जो डर है, या जो ये दर्द है, वो कोई भी नया नहीं है, ये इससे मैं फैमिलियर हूँ, ये मेरा फैमिलियर पेन है। But all I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile and smile and smile. तो यहाँ पे अम्मा, here you can see, as I have told you, she is an indigenous poet. तो यहाँ पे उन्होंने ये indigenous word use किया है, which is अम्मा, ठीक है। तो हियर वो यहाँ पे वो कहती हैं कि लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई, बस इसी होप में कि मैं उन्हें दोबारा मिलूंगी, उन्हें दोबारा देखूंगी। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड ओनली स्माइल। तो यहाँ पे उन्होंने 3 बार स्माइल लिखा है और फिर उन्होंने आगे डॉट डॉट बनाए हैं। बेसिकली ये पार्टिंग वर्ड्स हैं उनके, ठीक है। यहाँ पे जो पोएट हैं वो और एक्सप्रेस करना चाहती है अपनी बात को, लेकिन वो इतनी इमोशनल हो गई हैं, इतनी फुल ऑफ इमोशंस हैं उनके मन में कि वो बस अब वो कुछ और आगे एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इस पोइट्री को एंड करा है और उन्होंने कहा है बस अब ऑल आई कैन डू इज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो बेसिकली वो यहाँ पे पार्टिंग वर्ड्स एंड वो होप कर रही हैं कि वो अपनी मम्मी को फिर से देख पाएँ और फिर से उनसे मिल पाएँ। तो ये बहुत ही छोटी सी, बहुत ही ब्यूटिफुल पोएट्री थी, माई मदर एट 66, विच इज रिटन बाय द पोएट Kamala Das. Meet you soon with my next video. So till then, stay tuned, be happy and keep studying.